Hello Adit. So today we are going to start with periodic table. We have already completed atomic structure, right? Yes, sir. Do you know the history of periodic table? How periodic table Uh, was developed? Why the requirement of table was there? Do you have any idea? I know that Mendeleev is known as the main creator of the modern periodic table, and he had a Yeah, large that is influence correct. over So it. the point is, I'll give you an analogy. Uh, when तुम्हारा जो study table है, उसमें physics, chemistry, maths, English, whatever, all the books are there. Hmm. तो व्हाट यू डू इज तुम केमिस्ट्री को जो सारे बुक्स है वो एक साथ रखते हो, फिजिक्स वाला जो बुक्स बुक्स होता है उसको एक साथ रखते हो, जो मैथ्स वाला Yes. बुक्स होता है, जो कॉपी होता है वो एक साथ रखते हो, राइट? सो दैट इट इज इजी टू फाइंड. सो यू organize in terms of similarities, right? Yes. So that is the basic requirement for the elements as well. In the earlier days, number of elements were less, so you could remember whatever the characteristics are. कि किसका क्या characteristics है. When there are 8 to 10 elements, 12 elements, तुम easily remember कर सकते हो. But as the number of elements were increasing, जितना ज़्यादा element discover हो रहा था, it was difficult to do that. Hmm. That was a difficult practice to do then. तो फिर क्या चाहिए था? एक चार्ट चाहिए था, एक टेबल फॉर्म चाहिए था, where you can connect the elements in terms of their similarities and dissimilarities. Basically, you want to find the correlation by some table or chart, right? And that was Okay. the necessity of getting something like this. So if you look back the history of the modern history of periodic table, you will see initially there is something called Doberanus law of triad, right? So he tried to find correlation connecting three elements together, right? There is Newland's law of octave, right? न्यूलैंड ने क्या बोला था कि हर एक 8 एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज रिपीट होता है. इट्स लाइक द सारेगामा पाधा नीसा, राइट? सा के बाद नेक्स्ट सा आ रहा है इन एट्थ नोट, द सेम थिंग. So he's tried to connect. He was a music lover. He tried to connect that way, but everything fell apart. जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था, that failed apart for हायर एलिमेंट्स. जब हेवियर एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहा था तो वो काम नहीं किया, राइट? एंड देन जो सबसे सिग्निफिकेंट फाउंडेशन था इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट वाज डन बाय मेंडलीव्स. तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया, दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. यू विल गेट सो मेनी रिसोर्सेज फॉर दैट. I'll directly jump into the modern periodic table. I just mentioned little bit of back history, how the modern periodic table has been developed. ठीक है ना? Yes, sir. So we'll directly start with the modern periodic table. Okay? देखो. So what is the basis of modern periodic table and modern periodic law? So there is a scientist named Henry Moseley, German scientist. So what he did, he bombarded the metal surface with high speed electrons. These are the high speed electrons which is bombarding the metal surface. तो फिर क्या होता है? When you excite something with some high speed electron or high energy, तो पहले तो वो excite होता है, फिर there will be de-excitation, right? Hmm. पहले excite होगा, but फिर to get the stability back, de-excitation भी होगा, मतलब वो energy छोड़ेगा भी. तो ये जो मेटल सरफेस होता है, दे रेडिएट एनर्जी इन द एक्सरे रीजियन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो एक्सरे इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो जब तुम मेटल सरफेस को ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हो, तो एनर्जी इज एमिटेड इन एक्सरे रीजियन. एंड व्हाट मोस्टली डिड इज ही measured the frequency of those X-ray radiation which is emitted by the metal surface on bombardment by high speed electrons. And what he found is कि जो frequency of X-ray है, that is proportional to the square root of the atomic number, right? Yes or no? Yes. तो ये जो frequency है, that is proportional to the square root of atomic number. तो for the first time कोई property of element, जैसे कि यहाँ पे different metals लेके ये experiment हुआ है, for the first time in the history the property of element was connected to atomic number. मेंडलीव ने क्या बोला था? That these properties are connected to the atomic mass, right?
बट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट आइडिया चेंज. इन द मीन टाइम मेंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिला था. देयर आर लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस व्हिच वर देयर, राइट? Yes. And Mosley tried to fix that with this. So what is the modern periodic law? It says that physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic number. Mendeleev's periodic law क्या था? Same statement, बस atomic number was replaced by atomic mass. Mendeleev's periodic law क्या था? That physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic mass. Modern periodic law क्या correction हुआ? Atomic mass को atomic number से replace किया गया, right? So you can see the Mendeleev's use atomic mass, modern periodic table uses atomic number. ठीक है? Yes. चलो. Now do you know what do you mean by periodic function? Periodic function, periodicity क्या होता है? पता है? No, sir. Periodicity means there is a repetition in a certain interval. That is called periodicity. तो ये जो physical and chemical properties of the elements उसका एक repetition होता है, ठीक है, in a certain interval of atomic number. That is the period. That is why it is said periodic function of atomic number. Atomic numbers के certain interval पे ये जो physical and chemical properties होता है वो repeat होता है, right? Okay. ठीक है ना. अब ये रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ए सर्टेन इंटरवल, मतलब सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर पे क्या होता है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वैलेंस शेल पर, राइट? और तुम्हें पता है कि ये जो प्रॉपर्टीज दे डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो वैलेंस शेल पे जो Yes. इलेक्ट्रॉन्स होता है दे पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस ओनली. तो ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो सिमिलर हो जाता है तो फिर प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगा, रिपीटेशन होगा, ठीक है? Yes, sir. तो देयर आर सर्टेन डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर जिसमें ये रिपीटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी रिपीट होता है, एंड दैट इज व्हाई I can say the reason of periodicity is the similar electronic configuration of the valence shell, which depends on the atomic number. So what we understood here कि modern periodic table का it depends on the atomic number. ठीक है? Yes, It sir. depends on atomic number. It depends on the electronic configuration. तुम्हें electronic configuration लिखना नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो तुम modern periodic table construct नहीं कर सकते हो, right? Because it is based on atomic number and electronic configuration. I hope this part is clear. Yes, sir. So let us come. Acha, one more thing, that modern periodic table is known as Bohr's periodic table as well. ठीक है? There are total 118 elements so far, and this is classified into 4 categories. These categories are created by Bohr, again that famous Niels Bohr. So he classified these all 118 elements into 4 categories. There are 7 periods and 18 groups. ठीक है? Yes, sir. Now let us understand the basic construction of modern periodic table. तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक पिलर दिख रहा है, येलो पिलर, जिसमें 2 वर्टिकल कॉलम है, राइट? वर्टिकल कॉलम मतलब क्या होता है? ग्रुप. तो लेफ्ट साइड में ये जो क्या दिख रहा है, ये जो पिलर है येलो पिलर, इसमें 2 ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप 1 एंड 2. एंड तुम्हें राइट साइड पे एक रेड पिलर दिख रहा है जिसमें देयर आर 6 वर्टिकल कॉलम्स और 6 ग्रुप. ठीक है? तो यहाँ पे 6 ग्रुप है. राइट साइड वाला पिलर पे, लेफ्ट साइड वाला पिलर पे देयर आर 2 ग्रुप्स, और दिस 2 आर कनेक्टेड बाय एक कनेक्टिंग पिलर, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है. ठीक है? तो इसमें कितना ग्रुप्स है? देयर आर 10 ग्रुप्स हियर. ठीक है? एंड ये ग्रुप्स का ये जो वर्टिकल कॉलम, इसका हाइट शॉर्ट. तो देयर आर 2 कॉलम्स ऑफ लार्जर हाइट एट लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट साइड में 2 ग्रुप है, राइट साइड में देयर आर 6 ग्रुप, एंड बीच में दिस 2 पिलर्स आर कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिंग पिलर एट द मिडिल जिसमें देयर आर 10 ग्रुप्स. ठीक है? नंबरिंग भी याद रख सकते हो कहाँ पे कौन सा ग्रुप्स है. लेफ्ट साइड पे ग्रुप नंबर 1 2 है, राइट साइड पे 13 to 18 6 ग्रुप है, एंड बीच में 3 to 12 देयर आर 10 ग्रुप्स. ठीक है? तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल है, एंड उसके नीचे यू कैन सी देयर आर 2 horizontal rows are known as periods, right? तो यहाँ पे कितना पीरियड दिख रहा है तुम्हें? I can see there are 18 groups, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 पीरियड दिख रहा है. I have done the numbering. Can you see that? Yes, sir. But separately ये
बेसिक जो फॉर्मेशन है उसके नीचे दो सेपरेट रोज आर प्लेस्ड, राइट? Hmm. This is the basic construction of periodic table. Periodic table looks like this. There are 18 groups and 7 periods. And the whole periodic table is classified into 4 blocks. ये block ये कैसे आता है I'll explain that later, but for now let me just tell you, ये लेफ्ट साइड पे जो दो ग्रुप्स है दे बिलोंग टू एस ब्लॉक, तो ये एस ब्लॉक के अंदर होता है। राइट साइड पे जो 6 ग्रुप्स है दे बिलोंग टू पी ब्लॉक, और बीच में जो 10 ग्रुप्स है दे बिलोंग टू 10 डी ब्लॉक, राइट? और Yes, sir. नीचे ये जो सेपरेट दो रोज है दे बिलोंग टू ए ब्लॉक, सो देयर आर 4 ब्लॉक्स हियर एज वेल, ठीक है ना? Yes, sir. नाउ इफ यू नो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे ये ग्रुप्स का नंबर अलग होता था, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे द नंबर्स आर डन इन इंग्लिश 1 to 18। मेंडलीव ने ये जो ग्रुप का नंबरिंग इन टर्म्स ऑफ रोमन फॉन्ट किया था, राइट? यू कैन Okay. सी हियर, सो ग्रुप 1 जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे है मेंडलीव में वो 1A था, ग्रुप 2 जो यहाँ पे है वो 2A था, ठीक है? और ये 13 to 18, इसमें 13 to जो 7 ये 3A to 7 है, ये मेंडलीव का 3 है, जो रोमन फॉन्ट से मैंने डिनोट किया है दैट इज द नंबरिंग और ग्रुपिंग ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो इंग्लिश फॉन्ट पे है दैट इज फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैन यू फॉलो मी? The one which is in okay. Yes, understood. तो ये 13 to 17 जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर है वो मेंडलीव में क्या था? 3A to 7। मेंडलीव में ए बी डिवीजन था, हर एक ग्रुप के अंदर 1 के अंदर ए बी था, 2 के अंदर ए बी था, ऐसे सेपरेट 2 सब ग्रुप्स था, ठीक है? तो यहाँ पे 3A to 7 है, और ग्रुप 18 जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे इट वाज ग्रुप 0, Okay. ठीक है? अच्छा, ये जो ग्रुप 11 and 12 इट वाज मेंशन्ड एज 1B and 2B इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, नाउ लेट अस, तो बचा क्या? 3 to 10। अब 3 to 10 में से देखो 3 to 7 these are denoted as 3B to 7B, ओके? एंड 8 9 10 इज सेपरेटली इसको ग्रुप 8 से डिनोट होता था। तो ग्रुप 8 में देयर इज अ ट्रायड, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे 8 9 10 तीन सेपरेट ग्रुप है, वो एक साथ एज ए ट्रायड मेंडलीव का ग्रुप 8 था रोमन फॉन्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. So I just connected this group numberings with Mendelev's. Okay, that's it. But this is the basic construction or formation of modern periodic table. I hope this is clear. Yes, sir. तो चलो देखते हैं। I have already mentioned there are 4 blocks A, P, D and A. कौन कहाँ पे होता है ये सारे मैंने बता दिया without explaining what are blocks. मैंने अभी तक वो explain नहीं किया, ठीक है? अब तुम एक, so let me ask you some quiz kind of question, informative question, कि पूरा periodic table पे मेटल्स ज्यादा है या नॉन मेटल्स ज्यादा है? Metal. देखो मेटल ज्यादा होगा पूरा पीरियोडिक टेबल पे। देयर इज ऑलमोस्ट 68% ऑफ मेटल एंड 32% ऑफ नॉन मेटल। 68% मेटल कैसे? देखो अब तुम्हें शायद पता होगा कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होता है दे आर कॉल्ड अल्काली मेटल्स, पता है? Yes. ग्रुप 2 में क्या होता है? अल्कालाइन आर्ट मेटल, इसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये सारे मेटल्स ये दोनों ग्रुप में होता है। तो ये जो येलो पिलर है इसमें सारे मेटल्स हैं, ठीक है? अब ये जो बीच में जो है इसमें आयरन कोबाल्ट निकेल जो भी मेटल्स होता है वो यहाँ पे होता है। तो दिस ब्लू वाला जो पिलर है कनेक्टिंग पिलर, इसमें भी सारे मेटल्स ही होता है। तो ये तो ज्यादा D हो ही गया block. ज्यादा। नाउ इफ यू लुक एट द, तो अभी यहाँ पे देखो व्हाट आई टोल्ड इज, ये पहला दो ग्रुप इसमें मेटल्स होता है, ये बीच में जो कनेक्टिंग पिलर है इसमें सारे मेटल्स होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो यू कैन सी दैट देयर आर सम रेड बॉक्सेस, राइट? There are some boxes which are marked red or highlighted as red boxes. यहाँ पे क्या होता है? मेटालॉइड्स होता है। मेटालॉइड क्या होता है पता है? They have properties of metals and राइट, तो non-metals. मेटालॉइड्स मतलब जिसके पास मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होता है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे इफ यू लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स मेटालॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो व्हाट डू यू सी हियर? यहाँ पे एक स्टेयरकेस डायगोनल जैसा अरेंजमेंट है। Hmm. This is just like a staircase diagonal arrangement, right?
तो Yes, कैन sir. आई से इसके लेफ्ट साइड पे मेटल्स है और राइट साइड पे नॉन मेटल्स है, एंड दिस आर द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो ये जो पी ब्लॉक है इसमें भी देयर आर सर्टेन पोर्शन ऑफ मेटल्स, है ना. तो दैट काउंट्स फॉर 68% ऑफ मेटल इन द होल पीरियोडिक टेबल. रिमेनिंग 32% में नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब आ जाता है. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट पी ब्लॉक इज एन इंटरेस्टिंग ब्लॉक टू एक्सप्लोर, क्योंकि इसके अंदर मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटालॉइड्स भी है. ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, जो एस एंड डी ब्लॉक पे तो नहीं है. तो पी ब्लॉक इज हैज मोर वैरायटी, राइट. कैन यू फॉलो मी? Yes, sir. चलो. तो यू कैन सी हियर 68% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स. पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स सब होता है. क्विक क्वेश्चंस क्या होता है? इफ आई आस्क यू पीरियोडिक टेबल पे, इफ आई आस्क यू टू नेम ए लिक्विड मेटल, व्हाट शुड बी द आंसर? सबको पता है लिक्विड Mercury. मेटल क्या होगा. Mercury. मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज द लिक्विड मेटल. इफ आई से एक लिक्विड नॉन मेटल बताओ. Bromine. ब्रोमीन. ब्रोमीन इज a liquid non-metal. If I say name me a metal जो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, मतलब इफ यू टेक द मेटल इन योर हैंड दैट विल मेल्ट, क्या होगा? Cesium. यूजुअली गैलियम. नॉर्मली गैलियम, सीजियम, ये सारे यू कैन कॉल लिक्विड मेटल. गैलियम हाथ पे लोगे इट विल मेल्ट. इसका मेल्टिंग पे, Okay. ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है, राइट. Okay. चलो. तो और क्या पता है कि कैन यू नेम मी ए ग्रुप जहां पे एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट. एक ही ग्रुप जिसके अंदर एलिमेंट्स ये तीनों फिजिकल स्टेट में मिलता है. Uh, the one which has zinc and mercury both in it. नहीं, वहाँ पे गैस कहाँ पे है? वहाँ पे देयर इज नो गैस. यू कैन से मर्करी लिक्विड है, ठीक है, बट बाकी दोनों तो सॉलिड है. आई सेड कि ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, all of them should be present, right? And that is group 17. So this is an interesting group 17, क्योंकि इसमें you will find elements in all different types of physical state. जैसे कि ये फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है, they are gas, पता है. Hmm. ब्रोमीन लिक्विड, ऑलरेडी नोन. Yes. आयोडीन एंड एस्टेटिन, ये जो दोनों है, आई एंड एस, आयोडीन एंड एस्टेटिन, they are Solid. solid. You can see Okay. in group 17 all elements are found in all different types of physical state. So these are quick informative questions, quiz जैसा questions है, ठीक है. ग्रुप 18 में क्या होता है? इनर्ट गैसेस होता है. These are called inert gases or noble gas. That is group 18. Yes. ठीक है ना. Hmm. अच्छा, और क्या क्वेश्चन हो सकता है? यू कैन सी दैट लिक्विड क्या क्या है. It is written over bromine, mercury, gallium, cesium. Francium will not consider because that is a radioactive element. ठीक है. Okay. गैसियस एलिमेंट्स क्या क्या होता है? ऑल इनर्ट गैसेस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन. आई होप दैट यू हैव Hmm. लर्न द होल पीरियोडिक टेबल. एंड देन वी हैव हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन. These are all gaseous elements. Okay. Metalloids. There are Hmm. 7 metalloids here: boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium. ठीक है. नोबल मेटल्स क्या है? जैसे हम नोबल मेटल्स क्या होता है? कंपैरेटिवली इनर्ट क्या होता है? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. मतलब नोबेल गैस जैसा इसका भी रिएक्टिविटी कम है. रिएक्टिविटी है बट मेटल्स में से ये कंपैरेटिवली इनर्ट होता है, राइट. पैलेडियम, Okay. प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, दिस आर कॉल्ड नोबेल मेटल्स. ओके. यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो आफ्टर 92 जो भी एलिमेंट्स मिलेगा दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट. तो उसमें ज्यादातर तो रेडियो एक्टिव होता है. Okay. ठीक है. जैसे कि इफ दे से व्हाट इज द डेंसेस्ट सॉलिड मेटल? इरिडियम. लाइटेस्ट मेटल क्या है? लिथियम. हार्डेस्ट मेटल क्या है? टंगस्टन. दीज आर ऑल क्विक क्विज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. रैपिड फायर टाइप Yes, ऑफ sir. क्वेश्चन. Hmm. और क्या वी हैव मिस्ड? सो यू कैन सी देयर इज आल्सो सम पोर्शन हियर जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है. बट आई विल कीप दिस फॉर लेटर, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी दिस प्रॉपर्टीज, तो उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे. ओके. Okay.
एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट मोस्ट अबंडेंट गैस क्या है, नाइट्रोजन, पता है तुम्हें, स्टोरेज ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट्स। देखो ये जो ग्रुप वन पे जो एलिमेंट्स होता है अल्कली मेटल्स, दोज आर हाईली रिएक्टिव, सोडियम पोटेशियम ये सारे, ठीक है। तो तुम Okay. इसको अगर तुम ओपन एयर पे रखोगे तो मॉइस्चर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो यू Hmm. कैन नॉट कीप देम इन ओपन एयर, तो वाटर में भी नहीं लग सकते हो क्योंकि वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो इसको केरोसिन पे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। Otherwise, it catches fire, right? राइट, इट विल कैच फायर। फॉस्फोरस इट इज केप्ट अंडर वाटर, स्टोर वाटर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। फ्लोरीन विच इज से हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल में से सबसे रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। इसको कहाँ पे प्रिजर्व होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, फ्लूरोपॉलीमर कंटेनर्स, राइट। Okay. These are all informations. So I hope that basically today's class we are going to analyze the whole periodic table. We're not going to get into the properties. बस periodic table को ठीक से analysis करेंगे कि इसमें कितना period है, कितना elements क्यों है, वो सारे चीज analysis करना है, ठीक है। Okay. चलो, तो अभी देखते हैं, यू नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो व्हाट वी डू, वी अरेंज द सबशेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉलोइंग द अबव प्रिंसिपल। जैसे कि पहले 1s फिर 2s 2p 3s 3p इन ऑर्डर पे ये सबशेल्स फिलअप होता है, पता है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज देखो, 1s में दो इलेक्ट्रॉन यू कैन ऐड, राइट, क्योंकि उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है फास्ट ऑर्बिट पे, और फास्ट शेल पे मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, एंड वो दो इलेक्ट्रॉन एस पे ऐड होता है, 1s पे एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Yes, sir. तो टेक्निकली क्या है, व्हेन यू ऐड वन इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रोटॉन भी ऐड होता रहेगा। इन एवरी स्टेप वन इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड, वन प्रोटॉन विल बी एडेड, राइट। एंड फॉर Yes, sir. adding every proton atomic number will increase by 1, you will get a new element, Yes. correct। तो Yes. tell me in the first shell how many elements you can get, फर्स्ट शेल के लिए तुम्हें कितना एलिमेंट Two. मिल सकता है, देयर विल बी टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, 1s1 दैट इज फॉर हाइड्रोजन, 1s2 दैट इज फॉर हीलियम, ठीक है। एंड एक चीज याद Yes, sir. रखो, जब व्हेन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द आउटर मोस्ट शेल, क्लियर। Can you explain किसी with an भी example? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि नाइट्रोजन 7, 1s2 Hmm. 2s2 2p3, तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Three. 2। दीज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। What was the question? द क्वेश्चन वाज कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Oh, okay. Two. Hmm. 2 है ना। Yes, sir. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वही पीरियड नंबर होता है, दैट इज द पीरियड Okay. नंबर एंड दैट इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो Okay. नाइट्रोजन Hmm. के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या है, सेकंड शेल। Yes, sir. नाइट्रोजन का पीरियड क्या है, सेकंड पीरियड, What does? क्लियर, Okay. Hmm. Yes, sir. ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो आई कैन से फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन हीलियम, राइट। Yes. अब 1s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 2s पे। Yes, sir. This one. जब 2s पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एलिमेंट कौन सा पीरियड पे मिलेगा मुझे, सेकंड पीरियड पे, क्योंकि Second. 1s2 के बाद आउटर मोस्ट शेल और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, Yes. तो फिर पीरियड नंबर 2 हो जाएगा। तो 2s1 Hmm. से यू विल गेट द एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड। तो ये 2 कहाँ तक चल रहा है, 2s2 2p6 तक। 2 इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब भी इलेक्ट्रॉन 3s में एंट्री लेगा पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3, राइट। Yes. Yes. तो तुम बताओ ये सेकंड पीरियड पे फिर मुझे कितना एलिमेंट मिलेगा, 6 plus 2, 8. सो यू विल गेट 8 एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड, राइट। Yes. तो लेट अस
प्रोसीड तो 2p6, तो ये सेकंड पीरियड खत्म हो गया, 3s स्टार्ट होगा, मतलब पीरियड नंबर 3 हो गया। तो 3s2 3p6, वी आर कंटिन्यूइंग विद 3, बट 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री ले रहा है? 4s2 4s पे। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द 4, तो आउटर मोस्ट शेल एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बन गया? 4। 4 तो पीरियड नंबर भी क्या बन जाएगा? 4 4। तो फिर थर्ड पीरियड में कितना एलिमेंट्स मिल रहा है? 2 plus 10 plus 6 वाई 10? 18 2 प्लस because 6, तुम इफ यू आर okay कंसिडरिंग ये 10, तो ये 4s के बाद तो 3d पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो जब 3d पे इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग, तो पीरियड तो ऑलरेडी 4 है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी 4 बन गया है, प्रिंसिपल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज आल्सो 4। तो ये 3d में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री ले रहा है, तो उसके लिए जो 10 एलिमेंट मिलेगा वो कौन सा पीरियड पे ऐड होगा? following one next one कौन सा पीरियड पे ऐड होगा? फोर्थ पीरियड पे या थर्ड पीरियड पे? 4th फोर्थ पीरियड पे। तो ये 3d वाला जो 10 एलिमेंट, दैट विल बी काउंटेड इन फोर्थ पीरियड, नॉट इन थर्ड पीरियड, एंड दैट इज व्हाई थर्ड पीरियड पे वी हैव 8 एलिमेंट्स, नॉट 18। क्लैरिटी got it मिला कुछ? yes sir ठीक है, तो थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, उसके बाद 4s, फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो गया, तो इट इज रनिंग 4s2 3d10 4p6, 4 इज रनिंग। जब तक हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, पीरियड नंबर 4 है, बट 4p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री लिया? 5s पे, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 5th 5 हो जाएगा। तो फोर्थ पीरियड पे फिर कितना एलिमेंट्स मिला मुझे? the fourth period if we include 3d10 then 18 देयर आर 18 एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड। तो ये जो 3d सीरीज में जितना एलिमेंट्स मिलता है, वो सारे फोर्थ पीरियड पे काउंट होता है, 3 में नहीं काउंट होता है। तो फोर्थ पीरियड में जो 18 एलिमेंट्स है, दैट इज फॉर 4s 3d एंड 4p, राइट? yes एंड सेम गोज फॉर फिफ्थ पीरियड, यहाँ पे 5s 4d एंड 5p, टोटल 18 एलिमेंट्स विल बी इन फिफ्थ पीरियड एज वेल। ठीक got है ना? it तो अब देखो 5p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री ले रहा है? 6s2 6s में। तो पीरियड क्या बन जाएगा? ये 5p 6 में, 5th पीरियड 5p में खत्म हो जाएगा, उसके बाद 6 पीरियड इज स्टार्टिंग। तो yes 6s 4f 5d 6p, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? yes sir बट यहाँ पे देखो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d में एक्सेप्शनली एंटर कर रहा है, वायलेटिंग द अबव प्रिंसिपल। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए? 4f पे, बट एक इलेक्ट्रॉन वायलेटिंग द अबव प्रिंसिपल पहले 5d में आ रहा है, एंड उसके बाद 4f इज फिलिंग। अब ये 4f कहाँ पे? देखो 5d1 वाला एलिमेंट जिस पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे 4f का एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है? बट तुम एक बॉक्स में तुम 14 एलिमेंट्स नहीं डाल सकते हो, दैट इज व्हाई दिस 14 एलिमेंट्स corresponding to this 14f electrons are placed separately at the bottom। दिख रहा है? ये 5d1 यहाँ पे 57 होता है, 57 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 57 होता है, दिस इज एक्सेप्शन, इट डज वायलेट्स द आवर प्रिंसिपल। तो इसके बाद से 58 to 71, this 14 elements will correspond to 14 4f electrons। तो ये जो 4f सीरीज है, ये 58 to 71 है, ठीक है? होना तो चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे 5d1 है, यहाँ पे ही इसको प्लेस करना चाहिए, बट जगह नहीं है, ठीक है? दैट इज वाई सेपरेटली प्लेस्ड at the bottom as a row, 58 to 71, this is called 4f series और lanthanides। lanthanides क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 5d1 वाला जो एलिमेंट है, that is called lanthanum। if you have already memorized, you should know this is lanthanum। अब yes lanthanum के बाद ये सीरीज मिलता है, तो it is called lanthanide। is it clear? yes तो यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे 6s में 2, 4f में 14, 5d में 10 एंड 6p में 6, यहाँ तक 6 पीरियड विल रन। उसके बाद 7s मतलब पीरियड 7 विल स्टार्ट। तो 6 पीरियड पे वी हैव टोटल 32 एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? yes sir एंड द सेम लॉजिक 7th पीरियड पे भी 32 एलिमेंट्स है, एंड 7th पीरियड पे 32 एलिमेंट्स, तो इसमें 5f सीरीज आएगा, राइट? यहाँ पे भी सेम चीज, ये 6d1 पे एक एलिमेंट आता है कॉल्ड एक्टिनियम, ठीक है? अब उसके बाद
ये 5f fill up होता है with 14 electrons and this is the 5f series which is called actinide क्योंकि ये actinium के बाद fill up होता है ये series. Is it clear? But sir, I have heard that the sixth period is the longest one and is the most elements compared to seventh period. 7th period तुम वहां पे देख लो यहाँ पे कितना होता है. 7th period शायद पूरा खत्म नहीं हुआ है, मतलब all the elements are not yet discovered. यहाँ पे 2, Okay. 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118 7 तक खत्म होना चाहिए टेक्निकली. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट डू यू नो, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है. आई होप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर कि कैसे हर एक पीरियड में इतना एलिमेंट्स हो रहा है, Yes, sir. कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होने से, आउटर मोस्ट शेल चेंज होने से क्या हो रहा है, Quantum number पीरियड increase नंबर leads to चेंज हो new रहा है, right? period. Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे देखो व्हाट डू यू सी हियर. तो ये पीरियड 1 है, पीरियड 1 पे 2 एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड. पीरियड 2 एंड पीरियड 3 में देयर आर 8 एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड. पीरियड 4 में देयर आर 18 लॉन्ग पीरियड. पीरियड 4 एंड 5 ये दोनों में 18 एलिमेंट्स है, दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड. 6, 7 32 एलिमेंट्स होता है, तो वेरी लॉन्ग पीरियड. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो पीरियड 1 में सिर्फ क्या है, एस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है. पीरियड 2 में क्या है, वी हैव एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक कहां से एंट्री ले रहा है, फर्स्ट डी ब्लॉक में, और Fourth. देखो फर्स्ट डी सब शेल थर्ड शेल पे होता है 3D में, राइट. और 3D में जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा ऑलरेडी वी आर इन फोर्थ पीरियड, तो फिर व्हाट कैन आई से कि डी ब्लॉक मुझे फोर्थ पीरियड से मिलेगा, राइट. Yes, sir. ठीक है, तो फोर्थ पीरियड पे 3D सीरीज है, फिफ्थ पीरियड पे 4D सीरीज है, तो डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है. फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता. तो यहाँ पे देखो दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि इफ यू लुक एट दिस, पीरियड 2 में एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है. एस ब्लॉक का 2 एलिमेंट, पी ब्लॉक का 6 एलिमेंट. थर्ड पीरियड पे भी सेम, एस ब्लॉक का 2 एलिमेंट, पी ब्लॉक का 6 एलिमेंट. पीरियड 4, Yes, 5 sir. में एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में क्या आ जाता है, डी ब्लॉक का 10 एलिमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई वी हैव 18 एलिमेंट्स इन दिस टू पीरियड्स, राइट. Yes, sir. और पीरियड 6, 7 पे ये डी ब्लॉक के पहले ए ब्लॉक, ये लैंथेनाइड्स और यहाँ पे एक्टिनाइड्स होना चाहिए, बट सेपरेटली यहाँ पे प्लेस नहीं होता है, तो ये नीचे प्लेस होता है, राइट. बट दिस 14 एलिमेंट्स विल बी काउंटेड इन 6 पीरियड एंड 7 पीरियड. तो टोटल काउंट कितना बन गया, 32. Yes, sir. चलो, तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यहाँ पे मेटलॉइड्स क्या होता है, लिक्विड मेटल्स, नॉन मेटल्स, 4F5 सीरीज. तो यहाँ पे मैंने वो सारे एलिमेंट्स का लिस्ट डाल दिया है which violates Auer principle, which does not follow the energy order of subshells. ओके, जिसमें कॉमन क्रोमियम एंड कॉपर तो तुम्हें पता ही होगा. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होता है बोर्ड में. 11 क्लास 11 में ये फेवरेट क्वेश्चंस होता है, क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यूए एक्सेप्शन. बट देयर आर मेनी मोर एक्सेप्शन जिसमें यू कैन, बाद में तुम जब डीए ब्लॉक करोगे वो सब करोगे तो ये आदत हो जाएगा. बट फॉर नाउ यू कैन आल्सो रिमेंबर 46. ठीक है, आई विल टेल यू व्हाई. पैलेडियम 46 पैलेडियम का होता है, आई विल टेल यू व्हाई, नॉट फॉर नाउ. ठीक है. अच्छा, आई थिंक Yes. आई गिव यू दिस वन, दिस आर द नोमेनिक्स जिससे तुम Yes, sir. ये ग्रुप्स को याद कर सकते हो. सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन द क्लास, दैट इज व्हाई मैंने तुम्हें पहले दे के रखा है. इफ समवन इज watching from the recording, you can just use this mnemonics to memorize these groups quickly. Why we try to memorize down the group? क्योंकि एक ग्रुप में, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होता है उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है ना. तो वो सिमिलरिटीज को याद रखने के लिए, वो एलिमेंट को याद रखने के लिए we try to memorize down the group. That always Got helps. Yes, sir. अच्छा, I think I have completed till this chart. Okay. Now let us understand. I am telling from the beginning ki S block, P block, D block, A block. Now what are these block elements? How to decide block of an element? That is what we are going to discuss. ठीक है. तो सिंपल सा चीज है,
किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल पे एंट्री लेगा दैट शुड बी द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल पे एंट्री ले रहा है तो वो एलिमेंट विल बिलोंग टू एस ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल पे एंट्री ले रहा है तो दैट एलिमेंट विल बिलोंग टू पी ब्लॉक। अगर डी और एफ में एंट्री ले रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो दैट एलिमेंट विल बिलोंग टू डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो देखते जैसे कि यहाँ पे देखो सोडियम एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 और यू कैन सिंपली 3s1। राइट नियॉन 3s1 राइट। यस सर। तो इसमें अच्छा यहाँ पे देयर आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू नो कि आउटर मोस्ट जो शेल होता है एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको हम एन से डिनोट करेंगे। द आउटर मोस्ट शेल विल बी डिनोटेड बाय एन। N is the highest principal quantum number in the electronic configuration, which is also the outermost shell or period number you can say. ठीक है, तो फिर पेनल्टीमेट शेल क्या होगा? पेनल्टीमेट शेल मतलब क्या होता है? आउटरमोस्ट शेल के ठीक पहले जो शेल होता है, तो दैट विल बी डिनोटेड एज n-1, दैट इज द पेनल्टीमेट शेल। मतलब जो आउटरमोस्ट शेल है उसका ठीक पहले वाला जो शेल होता है। ठीक है, और पेनल्टीमेट शेल के पहले जो शेल होता है दैट विल बी कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है ना? तो अगर एंथ शेल आउटर मोस्ट शेल होता है तो फिर पेनल्टीमेट शेल क्या होगा n-1 शेल, और एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होगा दैट शुड बी n-2। क्लियर हुआ? यस सर। चलो, तो यहाँ पे कहना है इसे सोडियम में ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे एंट्री ले रहा है एस सब शेल पे। ये एस सब शेल कौन सा शेल पे है? कैन आई से दैट इट इज इन द आउटर मोस्ट शेल? यस। थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल हियर एंड उसका एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री ले रहा है। पोटेशियम में क्या है एटॉमिक नंबर 19, तो इसमें आर्गन, जिस आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन उसके बाद 4s। तो यू शुड नो दैट हर एक पीरियड खत्म होता है एक इनर्ट गैस से एंड उसके बाद एक नया शेल स्टार्ट होता है एस से। ठीक है ना? तो कहना है इसे सोडियम पोटेशियम ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंट्री ले रहा है एंड ये एस सब शेल nth शेल पे, nth मतलब आउटर मोस्ट शेल। ओके, so that is the condition last electron enters the ns subshell। तो फिर I can say this element belongs to s block। ठीक है, यस सर। तो n से आउटर मोस्ट शेल के पहले पेनल्टीमेट शेल तक मतलब n-1 जो शेल होता है वो पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो पेनल्टीमेट शेल फुल होता है और आउटर मोस्ट शेल में एस में इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पे अप टू n-1 शेल कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ डू यू राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कैसे लिखोगे इस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? तो पहले व्हाट शुड आई राइट, एक ये इनर्ट गैस खत्म होता है उसके बाद एक नया शेल स्टार्ट होता है जिसका इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यस और नो? यस। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो पीरियड नंबर निकालने का तरीका एक ही है एंड दैट इज व्हाट कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। दैट शुड बी द पीरियड नंबर। लिखा हुआ है पीरियड नंबर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट इज आल्सो द आउटर मोस्ट शेल। राइट? यस सर। चलो सही है। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स मुझे कहाँ पे मिलता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वो जो दो ग्रुप होता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 मतलब अल्कलाइन आर्ट मेटल्स। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन आर्ट मेटल्स एंड ये मेटल्स का वैलेंसी फिक्स होता है। जैसे ग्रुप 1 मेटल्स जो होता है उसका वैलेंसी 1 होता है एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होता है उसका वैलेंसी 2 होता है एंड दे आर फिक्स्ड वैलेंसीज। राइट? ओके। चलो, हाइड्रोजन एंड हीलियम यू कैन से कि इसमें तो इसमें ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है बट इसका पोजीशन इज बिट डिबेटेबल कि हाइड्रोजन एंड हीलियम का पोजीशन क्या बोलूं, दैट इज डिबेटेबल क्योंकि हीलियम में इसमें तो इलेक्ट्रॉन आता है बट वो इनर्ट गैस जैसे बिहेव होता है, दैट इज अ इनर्ट गैस जो पी ब्लॉक में होता है। तो इन दोनों को हम अलग से कोई ब्लॉक और ग्रुप इसमें हम असाइन नहीं करेंगे। ठीक है, देयर पोजीशन इज आर्ग्यूएबल। ओके। अच्छा,
नाउ वंस यू डिसाइड कि कोई एलिमेंट एस ब्लॉक पे है तो उसका ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करो, हाउ डू यू डिसाइड देयर ग्रुप नंबर? तो ग्रुप नंबर डिसाइड करना इज इजी। कैसे डिसाइड करना है? सिंपल, तुम्हें देखना है कि एनएस में एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो फिर बताओ ये सोडियम कौन सा ग्रुप में होना चाहिए? 1। 1, क्योंकि यहाँ पे एन इजिकल टू 3 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम कौन सा ग्रुप में होना चाहिए? 1। ये भी ग्रुप 1 में होना चाहिए। अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होता तो इट वुड बी ग्रुप 2। तो दिस इज यस सर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। हम्म। तो लेट अस टॉक अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो, लेट्स से नाइट्रोजन 7। तो यस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2p3, और यू कैन राइट हीलियम 2s2 2p3, राइट? तो व्हाट डू यू सी, द लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री ले रहा है? 2p3, so it will be. मतलब आउटर मोस्ट शेल का पी साफ शेल पे, राइट? Hmm. तो दैट्स इट। तो व्हाट आई विल से दैट अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एन पी में एंट्री लेता है, एन मतलब आउटर मोस्ट शेल, पी मतलब पी साफ शेल, अगर उसमें एंट्री लेता है इट शुड बी अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। Yes. सल्फर 3s2 3p4, तो ये भी पी ब्लॉक में आता है, Hmm. ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मुझे कहाँ पे मिलेगा? पीरियोडिक टेबल का राइट कॉर्नर पे देयर आर 6 ग्रुप्स, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, दिस 6 ग्रुप्स फॉर्म्स द पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक में वैरायटी ज्यादा होता है, उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सब कुछ मिलता है। देयर आर ग्रुप्स जिसमें एलिमेंट्स विल बी फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल फिजिकल स्टेट्स, राइट? The P Hmm. block is more colorful, or colorful in the sense more interesting, Okay. ठीक है। तो यहाँ पे Yes. कंडीशन क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एनपी सब शेल, n-1 तक, मतलब पेनल्टीमेट शेल तक यूजुअली फिल अप होता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज कंप्लीटली ट्रू। क्यों नहीं, देख लेते। लेट्स से सेलेनियम 34, क्या होगा? Hmm. तो आर्गन में 18, आर्गन के बाद 4s में दो इलेक्ट्रॉन आता है ना? Hmm. कोई भी इनर्ट गैस के बाद एक नया शेल स्टार्ट होता है, तो ये 4s स्टार्ट होगा। मैंने 4s बाद में लिखा, 3d पहले लिखा, आई मीन Hmm. कंसिडरिंग द इन वैल्यू, बट द इलेक्ट्रॉन 4s में ही पहले मिलेगा, राइट? तो Yes. 4s2 3d10 एंड 4p4। तो व्हाट डू यू सी हियर? कैन यू सी कि यहाँ पे अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एन पी में एंट्री लिया है, एन इज 4 Hmm. इन दिस केस, बट उसके पेनल्टीमेट शेल 3 तक पूरा भरा हुआ है, 3d10 तक Hmm. पूरा भरा हुआ है। Yes Yes. or no? Hmm. So what can I write? That up to n-1 shell completely filled by electrons. तो यहाँ के p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? इनर्ट गैस खत्म होता है, मतलब एक शेल खत्म होता है, उसके बाद नया शेल स्टार्ट होता है, ns, ठीक है, ns2 Hmm. np 1 2 6, Got it. ठीक है। ns के बाद np आता है, 4s के बाद 4p। अब यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट रॉन्ग। ये इनर्ट गैस खत्म होता है, ये ns2 और फिर n-1d, और आई शुड राइट दिस वे। तुम ये भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट रॉन्ग टू राइट n-1d10, फिर ns2, फिर np में 1 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है, बट नॉर्मली वी स्किप दिस पार्ट, सिंपली ये लिख लेते हैं। दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है ना? Hmm. चलो सही है। But can it be zero also, or only 1 and 2? सॉरी, Here you have written it can be S can be 0 to 2, but shouldn't it be 1 to दैट इज 2? नॉट फॉर पी ब्लॉक, वो डी ब्लॉक के लिए है। दिस Okay. पार्ट इज फॉर डी ब्लॉक, नॉट फॉर पी ब्लॉक, ठीक है। Okay. Hmm. तो यहाँ पे देखो,
अच्छा, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल्स होता है, कुछ मेटल्स भी होता है, मेटलॉइड्स भी होता है. देयर आर 6 ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे होता है, राइट कॉर्नर पे. उसमें ग्रुप 18 इनर्ट गैस होता है. ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स होता है दे आर कॉल्ड हैलोजेंस. ठीक है. Yes. ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स होता है दे आर कॉल्ड हैलोजेंस. ग्रुप 16 वाला जो एलिमेंट्स होता है दे आर कॉल्ड चैल्कोजेंस. What are they ठीक called? है. दैट इज हाउ द पी ब्लॉक इज ऑल अबाउट. नाउ द क्वेश्चन इज पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करोगे. पीरियड नंबर डिसाइड करने का तरीका तो सेम होता है. यू जस्ट नीड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो इफ आई से कि या सल्फर का पीरियड नंबर क्या होना चाहिए फिर. Sulfur will be 3 सल्फर 3 में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 3s2 प्रिंसिपल 3 क्वांटम नंबर क्या है. 3. 3. तो 3 इज द पीरियड नंबर. तो ग्रुप नंबर Yes. कैसे डिसाइड करो. ग्रुप नंबर डिसाइड करने का रूल चेंज होता है. पीरियड नंबर का रूल सबके लिए सेम होता है. सो हाउ डू यू डिसाइड ग्रुप नंबर फॉर सल्फर और एनी पी ब्लॉक एलिमेंट. तो पी ब्लॉक में देखो, इफ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, कि पी ब्लॉक हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है 13 से, राइट. उसके पहले एस Hmm. ब्लॉक एंड डी ब्लॉक होता है, बिकॉज Hmm. पी ब्लॉक इज एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, है ना. Yes. तो क्या करेंगे. सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड कि एनपी पे कितना इलेक्ट्रॉन है एंड दैट शुड बी एडेड टू 12 टू फाइंड द ग्रुप नंबर. जैसे सल्फर का क्या होगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, सो इट शुड बी 12 प्लस 4 16, राइट. Hmm. जैसे नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए. एनपी पे 3 इलेक्ट्रॉन है एंड उसके साथ Hmm. 12 ऐड करो, यू विल गेट 15. दैट शुड बी 15. द ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर. Yes, sir. तो ये हो गया पी ब्लॉक. लेट अस टॉक अबाउट डी ब्लॉक. लेट अस टेक आयरन. आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है. आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26. तो इसका 26. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो यू ऑलरेडी नो आर्गन 18. 4s ठीक to है. कोई भी 3d6. इनर्ट गैस के साथ एक क्या होता है, एक इनर्ट गैस के बाद एक नया शेल स्टार्ट होता है विच इज 4s. तो 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन डालो, फिर 3d में 6 इलेक्ट्रॉन. ड्यूरिंग द राइटिंग मैंने 3d पहले लिखा है, बट इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s में ही जाएगा ना. Yes. तो ये 4s टू 3d6. ठीक है. क्रोमियम पे देखो, एक्सेप्शन है 4s1 3d5. ये पैलाडियम Hmm. और भी एक एक्सेप्शन है जो मैंने यहाँ पे डाला था. मैंने बताया था ना कि पैलाडियम इज एक्सेप्शन दैट डज नॉट 46. फॉलो आवर प्रिंसिपल. इसमें 5s 0 40 10 होता है, तो 5s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे डी में आ गया है विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू 5s. तो दिस इज अनदर एक्सेप्शन. यू कैन रिमेंबर दिस वन. तो व्हाट डू यू सी डी ब्लॉक में जो पेनल्टीमेट शेल है, मतलब जो n-1 शेल है, जैसे कि आयरन में 4 इज द आउटर मोस्ट शेल, 3 इज द पेनल्टीमेट शेल. तो इसका देखो, ये पेनल्टीमेट शेल का जो डी सब शेल है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री ले रहा है, राइट. यू ऑलरेडी नो 3d सीरीज मुझे कहाँ पे मिलता है, फोर्थ पीरियड पे, राइट. Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ, 3d पे जब इलेक्ट्रॉन एंट्री लेगा, पीरियड नंबर इज ऑलरेडी 4, आउटर मोस्ट शेल इज ऑलरेडी 4, राइट. Hmm. तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री ले रहा है, डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, माइना मतलब n-1 डी पे. इज इट क्लियर. No, sir. What did you say about the n minus 1? n-1 इज द पेनल्टीमेट Oh, शेल 4 ना, minus 1. 3. राइट. Hmm. तुम ऑलरेडी यू हैव लर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल. 3d सीरीज कहाँ पे मिलता है, फोर्थ पीरियड पे. मतलब 3d सीरीज Yes, 3d sir. पे जब इलेक्ट्रॉन एंट्री ले रहा है ऑलरेडी, आउटर मोस्ट शेल इज फोर्थ शेल, तो 3 पेनल्टीमेट शेल हुआ ना. Yes, sir. तो व्हाट कैन आई से, तो डी ब्लॉक मतलब व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, राइट. Yes, sir. ठीक है. तो ये n-1 डी में इलेक्ट्रॉन एंट्री लेता है. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट एंटर्स इनटू n-1 डी, राइट. Yes. ठीक है. एंड इफ यू लुक एट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो व्हाट डू यू सी, ये इनर्ट गैस के बाद n-1 डी, इसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है. एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, राइट. बट जो NS है, इसमें इफ आई इंक्लूड ऑल द एक्सेप्शंस तो 0 to 2 हो सकता है. जैसे पैलाडियम में 0 है, क्रोमियम में 1 है, यहाँ पे 2 है. 2 is the normal case, but 0 1 these are the exceptions which are included in the general electronic configuration. So this is the general electronic configuration of d block elements, right. Yes, sir. तो यहाँ पे d block elements का डिटेल्स है, क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पेनल्टीमेट शेल का डी सब शेल n-1 डी पे. ठीक है. और इसमें nth शेल एंड n-1 शेल आर इनकम्प्लीटली filled.
ठीक है, ये इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया। डी ब्लॉक कहाँ पे होता है? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में होता है, राइट? सो यू कैन कंसीडर कि एस ब्लॉक में मेटल्स होता है, पी ब्लॉक एंड में मुझे नॉन मेटल्स भी मिलता है, तो डी ब्लॉक इज द ट्रांजिशन फेज वेयर वी आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, दैट इज व्हाई डी ब्लॉक कैन आल्सो बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट? But D is fully metals, right? डी में मेटल ही होता है, but throughout that D block we are moving towards the non-metal metal arts, right? Okay. इस ब्लॉक में हार्डकोर मेटल्स होता है and through the D block we are moving to the non-metals, so that is why it can be called transition metals as well. मेटल ही है but transition metals बोल सकते हो। but ये बहुत पुराना कंसेप्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ये जो बात है, ये जो वर्ड है, दैट कम्स फ्रॉम दिस आइडिया, बट इसका टेक्निकल डेफिनेशन कुछ अलग होता है। ठीक है, now Okay. what are the special characteristics of D block elements? फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे कि तुम्हें पता है कि आयरन +2 +3 दोनों में जा सकता है, राइट? फेरस एंड फेरिक। कॉपर +1 +2 दोनों में जा सकता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्री। तो ऐसे सारे जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स होता है, दे कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, राइट? दैट इज द फर्स्ट वन। एंड ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पार्ट इज दे फॉर्म कालाट कॉम्पाउंड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो कॉम्पाउंड्स होता है वो कालाट होता है, एंड दे ऑल्सो फॉर्म complex compounds. Class 12 में there is a whole chapter called complex compounds और coordinate compounds, जिसका सेंटर पे कौन होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, so they form complex compounds and another part is they make good catalyst। तुम्हें पता है निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम ये सारे कैटलिस्ट बन सकते हैं, and they can form compounds which are also good catalysts। so right, तो यहाँ से अच्छा कैटलिस्ट भी मिलता है, and exceptions I have already mentioned it। now the question is period number, तो तुम्हें इट इज इजी टू फाइंड। अगर डी ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करूं? हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट? तो यहाँ पे देखो, जैसे आयरन का ग्रुप डिसाइड करना है, कैसे करेंगे? सिंपली एनएस पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड n-1 में n-1 डी में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट द ग्रुप नंबर। तो आयरन का ग्रुप नंबर क्या है यहाँ पे? Iron, since iron will be 6th group सॉरी, plus 2. So 6 iron plus will 2, be in so the this 8th is group. 8. If I say what is the group number of chromium? Chromium will be 2 before that. So 6th. राइट, 5 + 1 6। पैलेडियम का क्या होगा? 10 + 0 विच इज 10। ठीक है, दैट इज हाउ डिसाइड ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। Got it. But sir, about that D block element, how do we know the multiple valency ones? Which ones have multiple valency and which ones don't have multiple valency? You said a characteristic of D block element is that they have multiple valency. But how do I know which elements have multiple valency and which do Almost not? all of the elements have variable valence. I said variable valency for most of them, almost all of them। ठीक है, there is a Okay. whole chapter called D and A block in class 12। तो ये सारे ग्रुप्स ब्लॉक्स हम सेपरेटली डिटेल में स्टडी करेंगे, बट दैट विल Okay. बी लेटर। ठीक है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं सारे पीरियोडिक टेबल का, Hmm. देन ग्रेजुअली विल मूव टू दिस थिंग्स। Yes, sir. तो ये ग्रुप नंबर हो गया। नाउ लेट अस कम टू ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो तुम बताओ फर्स्ट, ठीक है, तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल पे एंट्री होना चाहिए। अब तुम बताओ एफ सब शेल पहले कौन सा शेल पे मिलता है? 4 3 तक कोई एफ सब शेल नहीं है, राइट? तो No, फर्स्ट एफ 4F. सब शेल इज प्रेजेंट इन 4th शेल, एंड 4f में जब इलेक्ट्रॉन एंट्री ले रहा है वी आर ऑलरेडी इन 6th पीरियड, राइट? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल जब 6 4f में जब इलेक्ट्रॉन एंट्री लेगा, आउटर मोस्ट शेल इज ऑलरेडी 6, वी आर ऑलरेडी इन 6th पीरियड। तो इसका मतलब 4 becomes the anti penultimate shell n-2, right? Yes. So what I say? What can we say? That last electron, A block मतलब last electron will enter into the ape subshell of anti penultimate shell, मतलब n-2f में entry लेगा। Is it clear? Where the Yes, sir. nth shell and n-1 shell, both of them are incompletely filled. What is it called? Anti-penultimate. एंटी पेनल्टीमेट, आउटरमोस्ट शेल, Okay. उसके पहले पेनल्टीमेट शेल, उसके पहले एंटी पेनल्टीमेट शेल, राइट? Okay.
तो ये n-2f में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री लेता है। तो तुम बताओ 4f में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स आता है वो फिर कौन सा पीरियड पे होगा, 6 पीरियड पे। Yes, sir. एंड 5f में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो मुझे कौन सा पीरियड पे मिलेगा, वो सारे एलिमेंट्स 7th पीरियड Seventh. पे, राइट। तो Yes, यहाँ sir. पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, इनर्ट गैस, उसके बाद ns स्टार्ट होता है, ns में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर n-1 में एक, देयर इज एन एक्सेप्शन, मैंने बताया था कि एक्सेप्शनली 5d में एक इलेक्ट्रॉन घुस जाता है, उसके बाद 4f फिल अप होता है, राइट। एक्सेप्शनली Yes. एक 6d में चला जाता है, फिर 5f फिल अप होता है, राइट। तो यहाँ पे दैट इज व्हाट इज रिटन, d में 0 और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो इफ ये 1 इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग द एक्सेप्शन, तो n-1 में n-1d पे आइदर 0 और 1 इलेक्ट्रॉन होगा, n-2f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स इट शुड बी देयर फॉर a ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो a ब्लॉक एलिमेंट्स मुझे कहाँ पे मिलेगा, आइदर पीरियड 6 और पीरियड 7 पे। अगर 4f सीरीज है तो फिर 6 पीरियड, 5f सीरीज है तो 7 पीरियड। इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे देखो 4f सीरीज 58 से स्टार्ट होता है, 71 पे खत्म होता है, फिर 5f सीरीज 90 पे स्टार्ट होता है, 103 पे खत्म होता है। ठीक है, दिस इज Okay. लैंथेनाइड्स एंड दिस आर एक्टिनाइड्स। ए ब्लॉक एलिमेंट्स भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है एंड दे आर प्लेस्ड सेपरेटली एट बॉटम इन 2 rows। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल Yes, sir. अबाउट द ब्लॉक केमिस्ट्री। सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर गिवन टू यू। Yes. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड द ब्लॉक, यू हैव टू डिसाइड द पीरियड नंबर एंड यू हैव टू डिसाइड द ग्रुप नंबर। ये तीनों डिसाइड करना है, व्हाटएवर यू हैव लर्नड सो फार। ठीक है, तो पहला 1s 2s2 2p1, तो ये कौन सा ब्लॉक में होगा? This will be in wait block. Which one is spdf block? कौन सा ब्लॉक? P. p ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है तो ये p ब्लॉक है। तो अगर p ब्लॉक है तो पीरियड नंबर क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। Period number will be 2. पीरियड नंबर विल बी 2, राइट। ग्रुप नंबर क्या होगा? 13. 13। ओके, ग्रुप नंबर 13 क्यों? 1 + 12, ये पी ब्लॉक का रूल है। जा बी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री ले रहा है? 3d5. So, but it will be राइट, D 3D में block. ले रहा है, 4s में पहले, बाद में 3D में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एट 3D, तो कौन सा ब्लॉक होगा? D. डी। पीरियड नंबर क्या है? Period number will be 4. पीरियड नंबर 4। और ग्रुप नंबर क्या होगा? Group number will be 5 + 1 6. राइट, सो इट शुड बी 5 + 1 = 6, राइट। एंड सी में? Yes, sir. C. So it is entering last in F block. लास्ट ए ब्लॉक, तो ये ए ब्लॉक में अगर 4f वाला सीरीज है तो पीरियड नंबर क्या होगा? यहाँ पे दिख रहा है 6 है, राइट। 6. ग्रुप नंबर क्या होगा? अच्छा, लेट मी टेल यू, ए ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप हमेशा 3 होता है। ए ब्लॉक Okay. एलिमेंट्स का ग्रुप हमेशा 3 होता है, ठीक है। तो जहाँ पे वो Okay. लैंथेनम एंड एक्टिनियम है वहाँ पे ही ए ब्लॉक का पोजीशन है, वहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, दैट इज वाई सेपरेटली प्लेस होता है। बट अगर ए ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर इज ऑलवेज 3। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट Yes, दिस sir. वन, 1s2 2s2, जल्दी बताओ। This will be S. Then period will be 2. राइट, And group will be 2. राइट। व्हाट अबाउट ई, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री लिया है? For D10 D block. तो ये डी ब्लॉक है। और पीरियड नंबर क्या है? 5th. 5। ग्रुप नंबर क्या होगा? Group will be 12. व्हाट अबाउट xenon? xenon Xenon मतलब इनर्ट is गैस। a inert gas, so it will be P. पी ब्लॉक, ग्रुप क्या होगा? इनर्ट गैस मतलब ग्रुप क्या है? Group is 18. 18। और तुम्हें पता होगा हीलियम से तुम काउंट करो, इफ यू हैव मेमोराइज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, Helium, राइट। तो neon, कौन सा पीरियड क्या argon, होगा? krypton, xenon. 5th. सो इट शुड बी
5. 5। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे बताओ कौन सा ब्लॉक है? uh, S. एज ब्लॉक। पीरियड नंबर? Period number 2. Sorry, पीरियड no, नंबर period 2। number will be 6. 6। ग्रुप Group नंबर क्या number होगा? will be 2. ग्रुप नंबर इज 2। नाउ व्हाट अबाउट लास्ट वन? Group number will be 3 since it is F. So this will be F block. ना लास्ट वन एच, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री लिया है? What is the order? It is 6s लास्ट to इलेक्ट्रॉन देखो ए 4p. डी, ये तो फुल है, लास्ट 6p में ही आएगा ना, Hmm. तो ये बी ब्लॉक है। So पीरियड नंबर period will be 6 होगा 6. एंड ग्रुप नंबर क्या होगा? Group 3. नॉट Sorry, 3, it is P. 12 13. प्लस 1 13 होगा। Hmm. ठीक है, तो आई थिंक वी हैव Yes. मेड अ गुड एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का जो मतलब, first of all you should memorize the elements down the group। I think you have done that, and you should know the detailing of periodic table। कहाँ पे क्या है, क्यों है, कैसे हर एक पीरियड में कितना एलिमेंट्स होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, हाउ डू आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे निकालना है। दिस आर द थिंग्स यू Hmm. नीड टू नो, दिस आर द बेसिक थिंग्स। अगर ये बेस क्लियर नहीं होगा तो बात, वो जो बाकी पीरियोडिक टेबल वुड बी डिफिकल्ट टू फॉलो। तो लेट अस फिनिश Okay. इट हियर। Yes, sir. चलो फिर खत्म करते हैं।